Do you have friendship with the Lord? क्या परमेश्वर के साथ आपकी मित्रता है? Or now and then you speak lies? या कभी कभार आप झूठ भी बोलते हैं? Or fighting with the other people? या दूसरे लोगों के साथ झगड़ा करते हैं? Talking nonsense? बिना मतलब की बातें करते हैं? All these things should not be there in your life. ये सब बातें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। Otherwise, यदि ऐसा नहीं है, cry unto the Lord. प्रभु को पुकारें, Lord, forgive me प्रभु मुझे क्षमा कर दे and make me your child. और मुझे अपनी संतान बना ले। Right now you have to do that. इसी समय आपको ऐसा करना है। The Lord is here. प्रभु यहाँ पर उपस्थित He'll है। surely cleanse you. निश्चय वो आपको शुद्ध करेगा। He'll make you his child. वो आपको अपनी संतान बनाएगा। My precious sisters, मेरी प्रिय बहनों, if you read 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4, यदि आप पहला तिमोथियुस 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद को पढ़ें, we read like this. तो यहाँ हम पढ़ते हैं, It is good and acceptable in the sight of God our Savior that we should be saved and come to the knowledge of the Lord Jesus Christ. यह हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है कि हम उद्धार पाएं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जानें। Every one of us should be saved हम में से प्रत्येक को उद्धार पाना आवश्यक है by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। The Lord Jesus gave his life on the cross just for you and for me. प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए ही अपनी जान दी। And we should believe. और हमें विश्वास करना है। We should look at him. हमें उसकी ओर देखना है। He gave his life for me. उसने मेरे लिए अपनी जान दी है। His body was broken to pieces because of me. मेरी खातिर ही उसका शरीर तोड़ा गया। And cry before him. और उसको पुकारें, Father, I realize that you have given your life for me. पिता मुझे एहसास है कि मेरे लिए ही आपने अपनी जान दी। And cleanse me with your precious blood you have shed on the cross. और क्रूस पर अपना बहुमूल्य लहू बहाकर मुझे शुद्ध किया। When you do that, जब आप ऐसा करेंगे, what will happen? तो क्या होगा? John 3:16 says, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 पद कहता the है, Almighty God sent his only begotten Son to suffer like that. For what reason? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया कि वो इस दुख को उठाए, और इसका कारण क्या था? That whomsoever believes in him should not perish but have everlasting life. कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। Those who believe that Jesus has died on the cross just for me, जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए ही क्रूस पर अपनी जान दी, will not perish. वे नाश नहीं होंगे। Will not perish. वे नाश नहीं होंगे। You will have a new life. आपको नया जीवन मिलेगा। When you die, जब आप मरेंगे, you'll go to heaven. आप स्वर्ग जाएंगे। Everlasting life you will have. अनंत जीवन आपको मिलेगा। This is salvation. इसी को उद्धार कहते हैं। 2 Peter chapter 3 verse 9 also says the same thing. दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9 पद भी यही बात कहता है। When we have such a close walk with the Lord, जब आप इस प्रकार से प्रभु की निकटता में चलते हैं, what will happen? तो क्या होता है? What will happen? क्या होता है? The Lord Jesus comes into your heart. प्रभु यीशु आपके दिल में आ जाता है। You can have a close communion with him. और आप उसके साथ घनिष्ठ संगति कर सकते हैं। This is the real Christian life. यही असली मसीही जीवन है। This is the Christian life, to have Jesus in you and with you. यीशु का आपके साथ होना और आपके अंदर रहना ही असली मसीही जीवन है। When you read the lives of the saints of God of Old Testament days, जब आप पुराने नियम के समय में परमेश्वर के संतों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, Abraham, Jacob, अब्राहम, याकूब, Joseph, यूसुफ and Moses, और मूसा and Daniel, और दानियल, all these people had the close communion with the Lord. ये सब परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति रखते थे। They believed him. वे उस पर विश्वास करते थे। They believed the Almighty God. वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते थे। David was very close to God. दाऊद परमेश्वर के बहुत करीब था। Abraham was a friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। What about you? आपकी दशा क्या है?
When I say about all these things, जब मैं ये सारी बातें बताती हूँ, you must check up your life. तो आपको अपने जीवन को जांचना है। Am I connected with Lord Jesus Christ? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई हूँ, जुड़ा हुआ हूँ? Do I have a close communion with the Lord? क्या मैं प्रभु की घनिष्ठता में चलती हूँ? Unless you have the close communion with the Lord, जब तक प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संगति नहीं रखते, your nature will not be changed. आपका जो स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। Fighting nature, लड़ाई झगड़ा करने वाला स्वभाव, saying lies, झूठ बोलने वाला स्वभाव, stealing money, पैसा चुराने वाला स्वभाव, and all sorts of the devilish activities will be there in your life. शैतान का हर प्रकार का कार्य आपके जीवन में होगा। But when you become the child of God, लेकिन जब आप प्रभु के बच्चे बन जाते हैं, washed by the blood of Jesus Christ, यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, you are become a new तो person. आप एक नए मनुष्य बन जाते हैं। 2 Corinthians 5:17 says so. दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 पद ये कहता है, You become a new person. आप नए व्यक्ति बन जाते हैं। Now, अब my sisters, मेरी बहनों, do you have friendship with the Lord? क्या परमेश्वर के साथ आपकी मित्रता है, Or now and then you speak lies? या कभी कभार आप झूठ भी बोलते हैं, Or fighting with the other people? या दूसरे लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, Talking nonsense? बिना मतलब की बातें करते हैं? All these things should not be there in your life. ये सब बातें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। I am explaining so carefully मैं इतनी गंभीरता से ये बातें इसलिए कह रही हूँ, because you should have a clean तो heart, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, clean life. आपका जीवन शुद्ध होना चाहिए। So check up your life. इसलिए अपने जीवन को जांचे। Are you a child of God? क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? Have you become the child of God? क्या आप परमेश्वर की बच्ची बनी हैं? Are your sins are forgiven by and washed by the blood of Jesus Christ? क्या आपके पाप क्षमा हो गए हैं और यीशु के लहू से धुल गए हैं? Otherwise, यदि ऐसा नहीं है, cry unto the Lord. तो प्रभु को पुकारें। Wherever you are sitting, जहां पर भी आप बैठी हैं, wherever you are sitting, जहां पर भी आप बैठी हैं, cry unto the Lord. प्रभु को पुकारें। Lord, forgive me. प्रभु मुझे क्षमा कर दें, Forgive me. मुझे क्षमा कर दें। Right now, wash me with your precious blood इसी समय मुझे अपने बहुमूल्य लहू से धो दें and make me your child. और मुझे अपनी संतान बना ले। Right now, you have to do that. इसी समय आपको ऐसा करना है। The Lord is here. प्रभु यहाँ पर उपस्थित He'll है। surely cleanse you. निश्चय वो आपको शुद्ध करेगा, He'll make you His child. वो आपको अपनी संतान बनाएगा। You can become His child right now. इसी समय आप उसकी संतान बन सकते हैं। That's why I said Jesus is इसीलिए here. मैंने कहा कि यीशु यहाँ उपस्थित When है। you talk to Him जब आप उससे बात करेंगी within your heart, अपने हृदय में, He'll come straight to you. तो वो आपके पास आएगा। This is happening now. यह इसी समय हो रहा है। He'll come straight to you वो सीधा आपके पास आएगा and put His hand upon you और अपना हाथ आप पर रखेगा and touch you. और आपको स्पर्श करेगा You'll be changed, transformed completely. और आप पूरी तरह से बदल जाएंगी। This is what is happening right now. इसी समय यह कार्य हो रहा है। The Lord is here. प्रभु यहाँ उपस्थित है। You're becoming a new person. आप एक नए इंसान बन रहे हैं। Titus 2:14 says, तीतुस 2 का 14 पद कहता है, Jesus gave Himself for us यीशु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया that He might redeem us ताकि वो हमें छुड़ा ले from every lawless deeds and purify us as His own special people. हर प्रकार के अधर्म से और हमें शुद्ध करके अपने लिए एक विशेष जाति बना ले। If you believe that यदि आप ये विश्वास करेंगे and you are satisfied that you have become the child of God, और भरोसा रखेंगे कि आप परमेश्वर की संतान बन गए हैं, God has made you His own special people. तो परमेश्वर ने आपको अपने लिए एक विशेष जाति बना लिया है। Right now it's happening. इसी समय प्रभु यह कार्य कर रहा है। God is giving you grace right now परमेश्वर इसी समय आपको यह अनुग्रह दे रहा है to make you His special child. कि आपको अपनी विशेष संतान बना ले। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord is doing everybody, touching everybody and making you His special
child of God. प्रभु इसी समय आप में से प्रत्येक को छू रहा है और अपनी विशेष संतान बना रहा है। God's special people. परमेश्वर की विशेष जाति, उसके विशेष लोग। Check up your life. अपने जीवन को जांचें। My precious sisters, मेरी प्रिय बहनों, this is the time we have to give ourselves to the Lord. यह हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में देने का समय है। To become the child of God. प्रभु की संतान बनने का समय To है। have Him with us always. उसे हमेशा अपने साथ रखने का समय है। Not only here. केवल यहीं पर नहीं, When you go back, जब आप वापस जाएंगी you will have Jesus with you. तो यीशु आपके साथ होगा। The joy of salvation with you. उद्धार की खुशी आपके साथ होगी। If you read Isaiah 12 verse 2, यदि आप यशाया 12 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ें, there we see we can enjoy having the joy of salvation. तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हम उद्धार की खुशी का आनंद ले सकते हैं। In the spirit I see the Lord is transforming many people. मैं आत्मा में परमेश्वर को बहुत से लोगों का जीवन बदलते हुए देख रही हूँ। So this is the basic thing you need, my sisters. इसलिए मेरी प्रिय बहनों, यह वो बुनियादी बातें हैं जो आपके जीवन में होना अनिवार्य है। When I gave my heart to the Lord, जब मैंने अपना दिल प्रभु को दिया, I was just 16 years old. उस समय मैं केवल 16 साल की थी। You know what I did after that? जानते हैं इसके बाद मैंने क्या किया? I was a teacher. मैं एक शिक्षिका थी। As I go to the school, और जब मैं स्कूल में जाती थी, on the way, रास्ते में I'll be talking to the Lord. मैं प्रभु से बात करते हुए जाती थी। I'll be walking in the street, मैं सड़क पर चल रही होती, but within my heart, लेकिन अपने दिल में I used to talk to the Lord. मैं प्रभु से बात करती रहती। In my school, there were lot of people, Christians, but talkative women. मेरे स्कूल में बहुत सी मसीही स्त्रियां थी, लेकिन वे फालतू की बातें करती थी। I used to tell the people, मैं लोगों से ये कहती, Lord, protect me from the evil eyes of these people. मैं प्रभु से कहती, प्रभु मुझे इन लोगों की बुरी नजर से बचाना। Let them not fight with me. वे मेरे साथ झगड़ा ना करें। Let me have peace. मुझे शांति प्रदान करें। Likewise, you can pray, my मेरी precious. प्रिय बहनों, आप भी इसी प्रकार से प्रार्थना कर सकते Check हैं। up your life. अपने जीवन को जांचें। I know right now the Lord has touched each one of you. मैं जानती हूँ प्रभु ने इसी समय आप में से प्रत्येक को छुआ I है। know your hearts are changed. मैं जानती हूँ कि आपके दिल बदल चुके हैं। You have accepted Jesus as your Savior right now. आपने इसी समय यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। You have become the children of God. आप परमेश्वर की संतान बन गई हैं। Let us say hallelujah. कहें हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, I'm excited to invite you to our Jesus Calls Arunachal Pradesh Prayer Festival. मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु बुलाता है अरुणाचल प्रदेश प्रार्थना महोत्सव में आपको आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। On November 8th and 9th. 8 और 9 नवंबर को इन सभाओं में बोलने के लिए आमंत्रित किया है। It's going to be at 3 p.m. each day. यह प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से होगा। So please come, and I know we'll richly be rewarded by God's blessings. आपका स्वागत है, आप जरूर वहाँ आशीष पाएंगे।